बाइनरी वेपर पावर cycle. तो binary vapor power cycles means two cycles are coupled to each other in series. ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी है? फर्स्ट इज योर मरकरी वेपर पावर साइकिल. ठीक है, एट हाई टेम्परेचर रेंज काम करती है. और सेकेंड इज योर स्टीम वेपर पावर cycle. So both are coupled to each other in series. The mercury vapor cycle is used for high temperature. Why it is used at the high temperature? Because it can vaporize slightly or it can vaporize in high temperature range relatively at the low pressure. Okay, and it cannot be used for the low temperature range, because if you use for the low temperature range, then in condenser the vacuum pressure is required to maintain. So it is very difficult to maintain the condenser pressure less than the atmospheric pressure for the mercury. That's why we do not use it for the low temperature range, and mercury is used for the high temperature range. And steam vapor power cycle, so both are connected to each other in a series. So how the vapor power cycle and steam vapor power are cycled to each other, we will see in the TS diagram. So first draw the TS diagram. So this is my TS diagram. This is the temperature and entropy. This is my two-phase dome. So here we have a binary vapor power cycle. So in binary vapor power cycle, this is so A, B, C and D. M किलोग्राम आपने ले लिया यहाँ पर मरकरी. M किलोग्राम of mercury is flowing through the cyclic process. So in this case the heat addition take place. This is my at the constant pressure. Pressure is constant. Here pressure is constant and temperature is constant. So heat addition by external source. And this is my turbine work done, WT1. turbine work done मिलेगा मुझे Hg का. ठीक है, this is my condensation process. So in condensation process the heat rejection take place. So this amount of this heat energy is transferred to the steam vapor power cycle, and the rejected heat transferred to the feed water heater under the two-phase dome. So how? Suppose this is my two-phase dome. The Rankine cycle under after expansion process, this point comes under the two-phase dome. This is a 2-point condensation starts. Another pumping process. So 1, 2, 3, 4, and this is my 5 and 6 point. So this is the this energy, the heat released in condensation process in mercury vapor power cycle is transferred to the feed water which is feeded into the boiler in steam vapor power cycle. So ये जो मेरा latent heat है, this latent heat is gained by the mercury vapor power cycle. The amount of heat released in condensation is transferred to the feed water which is flowing feed water in the boiler under the two-phase dome. And after this process, and after the state 6, the external heat energy source means the steam is heated by the superheater. यहाँ पर आपका steam heat supplied किया जाएगा with the help of superheater. And further this steam passes through the turbine. So we get the turbine work done in steam.
then condensation process, heat rejection in steam vapor power cycle, and after that the pump, it is pumped. So यहाँ पर आपका हीट रिलीज होगा, रिलीज करने के बाद यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर आएगा, ले लिक्विड फेज में. सो लिक्विड वाटर इज पम्प्ड थ्रू द पंपिंग प्रोसेस एंड द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन्ड ड्यू, ठीक है. सो ये पंपिंग वाटर लिक्विड सब्सटेंस अप टू द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन तक, ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी गेन्ड फ्रॉम द इकोनोमाइजर, यहां पर इकोनोमाइजर से हीट गेन करेगा, ठीक है. तो इसमें साइकिल में हमारे पास 2 साइकिल है. वन इज योर मरकरी वेपर पावर साइकिल, अनदर वन इज योर स्टीम वेपर पावर साइकिल. द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन कंडेंसर ऑफ द मरकरी वेपर पावर साइकिल इज ट्रांसफर टू द फीड वाटर ऑफ फीड वाटर अंडर द 2 फेज डोम, ठीक है, टू द बॉयलर. तो ये जो हमारे यहाँ से अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, वो जो फीड वाटर बॉयलर के अंदर है अंडर 2 फेज डोम, उसको ट्रांसफर हो जा रहा है. तो फीड वाटर को ये ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, ठीक है. सो नाउ हियर हाउ टू फाइंड आउट द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ दिस कपल्ड साइकिल. So first of all, I will draw Re again, and we will try to find out the efficiency of the coupled cycle. इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं. ये है मेरा डायग्राम. This is the TS diagram. Above is your steam mercury vapor power cycle. यहाँ से मरकरी फ्लो हो रही है, A, B, C और ये D. मरकरी में आपका जो हीट सप्लाइड हो रहा है मरकरी वेपर पावर साइकिल में A से लेकर D तक, तो चेंज इन एंथैल्पी HA माइनस HD, मास किलोग्राम इसका M किलोग्राम ऑफ स्टीम. तो यहाँ पर ये हीट सप्लाइड हो रही है मरकरी वेपर साइकिल को. ये टरबाइन वर्क डन मिल रहा मुझे STG. दूसरा यहाँ पर ये कंडेंसेशन के थ्रू हीट रिजेक्ट हो रही है, ये पूरी की पूरी हीट ट्रांसफर हो रही है फीड वाटर को, जो आपका सेकेंड वेपर पावर साइकिल में जो स्टीम वेपर पावर साइकिल है उसके फीड वाटर को सप्लाई हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ जो बॉयलर में जो फीड वाटर है उसमें अंडर द 2 फेज डोम ये लेटेंट हीट ट्रांसफर हो रही है. ठीक है. एंड बिफोर पंपिंग द हीट इज सप्लाइड बाय द इकोनोमाइजर. तो ये सेकेंड हमारी है, ये हमारी बॉयलर प्रेशर लाइन है. दिस इज माय कंडेंसर प्रेशर लाइन. ठीक है. ये आपका टरबाइन वर्क डन है WT2 मान लीजिए. तो अब आपका कंडेंसेशन यहाँ पर आपका ये इस तरीके से है WT2. ठीक है. सुपर हीटेड लेते हैं. कंडेंसेशन के प्रोसेस के बाद ये पंप किया जाएगा. तो यहाँ से पंप वर्क डन, और ये जो यहाँ पर हीट सप्लाइड होगी वो इकोनोमाइजर से होती है, इकोनोमाइजर से. अब हमें फाइंड आउट करना है हीट सप्लाइड. तो हीट सप्लाइड कितना होगा टोटल साइकिल में? मास फ्लो रेट ऑफ द मरकरी, एंथैल्पी चेंज HA माइनस HD, HA माइनस HD. अब और कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर सप्लाई हो रही है इकोनोमाइजर से और सुपर हीटर से सेकेंड में. सो 1 किलोग्राम हमने लिया, इसमें जो फ्लो हो रहा है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर जो स्टीम के फॉर्म में ये फ्लो कर रहा है इन दिस साइकिल. सो 1 किलोग्राम माइनस एंथैल्पी ड्रॉप. दिस इज माय फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. तो ये कितना हो जाएगा? H5 माइनस H4. ठीक है. प्लस 1 किलोग्राम, ये कितना हो जाएगा? H1 माइनस H6, H1 माइनस H6. इतना हीट अमाउंट सप्लाइड हो रहा है पूरी कपल्ड साइकिल में. और हीट का रिजेक्शन कितना हो रहा है हमारा वो देखते हैं थ्रू दिस कंडेंसर. सो 1 किलोग्राम H2 माइनस H3. ठीक है. सो एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल क्या है? हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन ओवर हीट सप्लाइड. सो 1 माइनस QR ओवर QS. तो यहां से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे साइकिल की एफिशिएंसी. दूसरा, नाउ अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैलेंस कंडीशंस, और यू मे राइट लाइक दिस WT माइनस WT1, ये ले सकते हैं WT1 प्लस WT2, ये वाला वर्क डन ले सकते हैं. यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, माइनस पंप वर्क डन. सो पंप वर्क डन कौन कौन सा है? एक ये है और एक ये है, माइनस WP1 माइनस WP2 ओवर
ठीक है, नेट वर्क डन डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। WT1 मेरा कितना है, MHA माइनस HB प्लस, ठीक है, दिस वन 1 H1 माइनस H2 माइनस पंप वर्क डन माइनस M HD माइनस HC माइनस 1 किलोग्राम के लिए H1 माइनस H2, ठीक है, डिवाइडेड बाई हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड वही है, ये वाली हीट सप्लाइड, तो यहां पर आपका इसको लिख देंगे हीट सप्लाइड। तो ये एफिशिएंसी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। नाउ, ठीक है, एंड मास फ्लो रेट, हाउ टू फाइंड आउट द मास फ्लो रेट ऑफ द मरकरी इन मरकरी वेपर पावर साइकिल according to energy balance condition in this zone. So according to energy balance condition, ठीक है, the amount of energy lost by the condenser in mercury vapor power cycle, तो ये कितनी है, mass flow rate of Hg Hb माइनस Hc, ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है, is equal to amount of energy gained by the feed water in boiler under the two phase dome. So ये कितना 1 किलोग्राम H6 माइनस H5। तो यहां से आ जाएगा मास ऑफ मरकरी फ्लोइंग इन द मरकरी साइकिल, मरकरी वेपर से H6 माइनस H5 डिवाइडेड बाई Hb माइनस Hc। इतने किलोग्राम ऑफ Hg पर किलोग्राम ऑफ वाटर, ये मेरा फ्लो होगा मरकरी वेपर पावर साइकिल में। सो इन दिस वे यू मे कैलकुलेट द कंबाइंड साइकिल एफिशिएंसी और कपल्ड साइकिल एफिशिएंसी एंड मास फ्लो रेट ऑफ द मरकरी इन मरकरी वेपर पावर साइकिल। फर्दर, हाउ टू फाइंड आउट द coupled cycle efficiency in terms of individual cycle efficiency. Okay, suppose अब हम देखते हैं इसमें, suppose two cycles are coupled to each other, ठीक है, suppose two cycles are coupled to each other in series। तो कैसे करेंगे इसको, ये ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग। बॉयलर, पहले का आपका टरबाइन WT1 मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ से हमारा कंडेंसर है, ठीक है। अब कंडेंसर से क्या होगा, हमारा हीट अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्शन होगा। जो ये अमाउंट हीट रिजेक्टेड होगी Q2, यहाँ पर बॉयलर में सपोज हम Q1 हीट सप्लाई कर रहे हैं और यहाँ हीट रिजेक्शन Q2। अब ये हीट जो है वो हमारी ट्रांसफर हो रही है सीधे के सीधे सेकेंड टरबाइन को, ठीक है। इसका टरबाइन वर्क डन है WT2, यहाँ पर आ जा रही है, ठीक है, एनर्जी सप्लाइड हो रही है। ये सोर्स का काम कर रहा है, दिस एनर्जी वर्क्स एज ए सोर्स फॉर द सेकेंड टरबाइन। तो ये कंडेंसर है, ठीक है, यहाँ पर आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है Q3। देन पंप वर्क डन है और पंप के थ्रू आपका ये फिर से यह कंडेंसर में चला जा रहा। तो इस तरीके से ये हमारा पंप, ये आपका हो गया पंपिंग वर्क डन है, कंडेंसर एंड ये आपका पंप वर्क डन है। तो ये साइकिल तो कंप्लीट, कंडेंसर, देन यहाँ पर एक पंप और है, पंप, और ये आपका। तो इस तरीके से साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द कंबाइंड साइकिल एफिशिएंसी। तो यू नो दैट एफिशिएंसी 1 माइनस QR ओवर Q सप्लाइड और 1 माइनस QR हीट रिजेक्टेड इन फर्स्ट साइकिल इज योर Q2 ओवर Q1। तो ये साइकिल आएगी, तो Q2 फ्रॉम हियर, Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस साइकिल एफिशिएंसी इनटू Q1। Similarly, efficiency of the second cycle 1 minus heat rejected Q3 over heat supplied Q2, ठीक है। सो ये मेरा Q2 हीट सप्लाइड होगा, ठीक है, Q2।
सो 1 माइनस यहाँ से लिख सकते हैं Q3 इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा Q2, ठीक है, Q3 ओवर Q2 ये आ जाएगा। अब हम साइकिल कंबाइंड साइकिल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो कंबाइंड साइकिल एफिशिएंसी टोटल, सो 1 माइनस हीट रिजेक्टेड QR, ओवरऑल के केस में Q3 ओवर हीट सप्लाइड Q1, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं, तो यहां से देखते हैं अब कैसे आता है इसका रिलेशन, ना तो मिल गया। तो यहां से टोटल जो एफिशिएंसी आएगी, ये टोटल है, तो टोटल के केस में टोटल आपकी एफिशिएंसी आ जाएगा फॉर्मूला 1 माइनस Q3 की रिस्पेक्ट में लिख देंगे यहाँ से 1 माइनस ईटा2 इंटू Q2 ओवर Q1। इन नेक्स्ट लाइन 1 माइनस ईटा2 और एफिशिएंसी ऑफ द सेकेंड साइकिल Q2 के प्लेस पे लिखिए यहाँ से, सो 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ द फर्स्ट टर्बाइन इंटू Q1 ओवर Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, सो टोटल साइकिल एफिशिएंसी 1 माइनस फर्स्ट साइकिल एफिशिएंसी 1 माइनस सेकेंड साइकिल एफिशिएंसी, ठीक है, इसको बाद में लिख दिया, ठीक है। तो ये टोटल साइकिल एफिशिएंसी हमारा फॉर्मूला निकल के यहाँ से आ गया। इफ n cycles are coupled in series, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, टोटल साइकिल एफिशिएंसी होगा 1 माइनस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू i इज इक्वल टू n, और ये हो जाएगा 1 माइनस ईटा i, तो ये प्रोडक्ट में मिल जाएगा। तो ये एफिशिएंसी मीन्स परफॉर्मेंस, और इन अनदर वे यू मे राइट लाइक दिस, टोटल लॉस इज इक्वल टू 1 माइनस टोटल एफिशिएंसी, ये टोटल लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारा आया था यहाँ से टोटल एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस द समेशन ऑफ ये 1 माइनस ईटा1 1 माइनस ईटा2, इस तरीके से फॉर्मूला आया था, और 1 माइनस ईटा2 इज इक्वल टू 1 माइनस फर्स्ट साइकिल एफिशिएंसी सेकेंड साइकिल एफिशिएंसी। तो ये मेरा क्या है, सपोज टोटल लॉस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लॉसेस इन ईच साइकिल। तो ये जो टोटल लॉस होगा, ई साइकिल में जो लॉस हो रहा है उन सभी साइकिल्स के लॉस का प्रोडक्ट आपको मिलेगा, टोटल लॉस, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। टोटल साइकिल एफिशिएंसी कभी कभी आ जाता है, सपोज ईटा1 इज योर 50% एंड ईटा इज इक्वल टू मीन्स सेकेंड साइकिल एफिशिएंसी इज योर 70%, फाइंड आउट द टोटल एफिशिएंसी या कपल्ड साइकिल एफिशिएंसी। तो कैसे करेंगे, 1 माइनस 0.50 एंड 1 माइनस 0.70, तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे 0.50 0.30 और 1 माइनस, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 5 और ये, तो 0.8 और 85%। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं टोटल साइकिल एफिशिएंसी, ठीक है। थैंक यू।